Hi everyone, welcome back to DGMZ for a new weekend episode. For all our returning viewers and subscribers, welcome back. We are glad you could join us again. And for the new viewers, we are very happy that you decided to tune in into the podcast for the first time. Hopefully, you will like what you hear. As always, for the new viewers, my recommendation would be do go through the introduction episode, because that will give you a good insight into the objective and motivation behind this podcast. Also, for your awareness, we have two playlists. The first playlist is dedicated to all these ghazals, which we cover from Diwan-e Ghalib every week. And the other playlist consists of all non-ghazal topics, still focused on Urdu poetry, focused on Mirza, focused on DGMZ activities, which we do here, but not the ghazal impressions. So do explore both the playlists and access the episodes that interest you. As you can see, I am recording from a different location today. I am on vacation. So bear with me with the sound quality. If you see a lot, if you hear a lot of background noise or echo, I do apologize for that. But the show must go on, so we will record with a dazzling Christmas tree. Hopefully the video will make up for the audio. Okay, so as always, before we get into the ghazal impressions, I'm going to go through the entire ghazal once, and then we will pick verse by verse for impressions. So here is how the ghazal goes. मतलब अर्ज किया है, बज़्म शहंशाह में आशार का दफ्तर खुला, रखियो या रब ये दरे गंजीना ए गौहर खुला। शब हुई फिर अंजुमे रक्षंदा का मंजर खुला, इस तकल्लुफ से कि गोया बुत कदे का दर खुला। गरचे हूँ दीवाना पर क्यों दोस्त का खाऊं फरेब, आस्ती में दश्न पिन्हा हाथ में नश्तर खुला। गो न समझूं उसकी बातें, गो न पाऊं उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैक कर खुला। है ख्याल हुस्न में हुस्न अमाल का सा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गोर के अंदर खुला। मुंह न खुलने पर है वो आलम कि देखा ही नहीं, जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शोक के मुंह पर खुला। दर पर रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। क्यों अंधेरी है शबे गम, है बलाओं का नुज़ूल, आज उधर ही को रहेगा दीदाए अख्तर खुला। क्या रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नामा बार अक्सर खुला। मक्तर्ज किया है, उसकी उन्मत में हूँ मैं, मेरी राहें क्यों काम बंद, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शाह के गालिब गुंबदे बेदर खुला। So, a fairly long ghazal, 10 शेरों की गज़ल है, and let's dive into it. So, पहला शेर, might have to move this a little. Okay. पहला शेर, बज़्म शहंशाह में आशार का दफ्तर खुला, रखियो या रब ये दरे गंजीना ए गौहर खुला। बहुत प्यारा शेर है और मतला है गज़ल का, तो it always has the responsibility of setting the
tone of the entire ghazal, the precedence of the entire ghazal. And of course, Ghalib has done the job beautifully. So, Bazm-e Shahenshah mein Ashar ka daftar khula. Bazm-e Shahenshah, Bazm is a congregation, and Shahenshah से related है तो यानी the court of the emperor. So जो शहनशाह है उसकी बज़म, उसकी महफिल में आशार का दफ्तर खुला है. आशार इज शेर, शेर व शायरी, पोइट्री का दफ्तर. नाउ दफ्तर इज ऑफ कोर्स हम लोगों को तो उसका टिपिकल मीनिंग पता है जो नॉर्मल वर्नाकुलर में यूज़ किया जाता है एज एन ऑफिस, राइट, और वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, और a डिपार्टमेंट. बट यहाँ पर दफ्तर को एक किस्म से वॉल्यूम और क्वांटिटी के नज़रिए से यूज़ किया गया है. वेरिन अशार का दफ्तर खुला मतलब कि अशारों की भरमार, मल्टीट्यूड, वॉल्यूम ऑफ शेर शायरी, वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, एज इफ द फ्लड गेट्स ऑफ इट हैज़ बीन ओपन्ड इन अ फॉर्मल वे. दफ्तर बोला है तो उसमें एक फॉर्मेलिटी आ जाती है. एंड यहाँ पे आई थिंक द वे इट कम्स अक्रॉस टू मी, यहाँ पे गालिब किसी नॉर्मल मुशायरे या किसी नॉर्मल गैदरिंग की बात नहीं कर रहे हैं. He does want to emphasize the fact that this particular bazm, this particular महफिल is in the emperor's court. And वहाँ पर along with गालिब सब दिग्गज और पहुँचे हुए शायर पहुँचे हैं अपना अपना कलाम पढ़ने. And Ghalib is one of them. And यहाँ पर even before we get into the second line, I just like the visualization Ghalib brings to us through the शेर, right? अगर आप by extension सोचें तो Ghalib is painting a picture कि इस वक्त, in those times when he was writing this particular ghazal, Urdu sher shairi was part of the courts. It was part of the courts. It enjoyed a very high level of interest and support and encouragement, right? The kings and the emperors were encouraging शेर व शायरी. They were supporting it. And हम लोगों ने तो काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं ऑफ शायर जहाँ शायरी से पेट नहीं भरता, राइट? आई मीन इट वाज अ वेरी अंडरपेड profession, if you may, but if you were a poet in the emperor's court, right, it did add a sustainability to the art, right? So एक sustainability का component गालिब बहुत प्यारी तरह से capture कर रहे हैं कि the fact that the emperor encouraged, supported, indulged in the Urdu poetry was something special, and Ghalib is thankful for it. He shows his gratitude for it. And दूरदर्शी थे गालिब बहुत. I mean he was very forward thinking, right? ये बात लिखने के लिए एक किस्म का वो मिजाज चाहिए कि सिर्फ मैं नहीं कि मैं फेमस हो जाऊँ, मैं एम्परर का फेवरेट हो जाऊँ. नहीं, he is talking about the whole art form as a collective, and trying to paint a picture about the support and encouragement it was getting. रखियो या रब ये दरे गंजीना एक गौहर खुला. रखियो या रब, God, always keep it like this. And like what? Dare Ganjina. Dar is door, Ganjina is a buried treasure, Gohar is pearls. So he's saying, God, don't let this change. Please don't let this change. Let these doors always remain open. These doors to the treasures of poetry, like pearls, right? Always remain open.
So in a way saying that let this support, let this platform, let this encouragement, let this indulgence by the emperor in Urdu poetry, let this opportunity of all poets and shayars to come together and just exalt in their art form. Always let this always be as is. Don't change it, don't take it away from us. एंड यहाँ पर गालिब की, जैसे मैंने कहा ना, वो एक हम्बलनेस, एक एप्रिसिएशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक एटीट्यूड वेयर ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एज अ शायर बट द इंटायर आर्ट फॉर्म, उनकी पूरी जो कम्युनिटी थी शायरों की, ये शेर उन सब को इंक्लूड करता है. इट इज़ इनकम्पसिंग every artist and the entire art form, and that comes across to me as beautiful. जिसे हम लोग कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप. इट वाज, यहाँ पर साफ दिखता है that it was not I me myself for Ghalib did as all responsible conscientious artists. Ghalib also realized that he was part of a community. He was part of a community and जो सबके साथ अच्छा होगा तो उनके साथ भी अच्छा होगा, जो सबके साथ बुरा हुआ तो उनके साथ भी बुरा होगा. So वो जज्बा बहुत, एटलीस्ट मेरे को वो जज्बा बहुत क्लियरली इस शेर में दिखाई देता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेर. शब हुई फिर अंजुमे रक्षंदा का मंजर खुला, इस तकल्लुफ से गोया बुत कदे का दर खुला. सो प्यारा शेर है, बहुत प्यारा शेर है. एंड लेट्स हैंडल द फर्स्ट लाइन एंड देन वी विल गेट इनटू द सेकेंड, क्योंकि दोनों लाइंस में बातें हैं जो कि काबिल गौर हैं. सो शब हुई, रात हुई, शब इज रात. फिर अंजुमे रक्षंदा का मंजर खुला. अंजुम इज स्टार्स एंड रक्षंदा इज द मैग्निफिसेंस, द ग्लिटर, द शाइन, द लाइट, द इल्यूमिनेशन, राइट. का मंजर खुला. एंड मंजर इज जस्ट अ sight to behold, an extravaganza, a visual extravaganza, right? जैसे कि किसी स्टेज पे आपने कोई बहुत खूबसूरत चीज़ डिस्प्ले कर दी, a display, a splendid display. So गालिब बोल रहे हैं कि एक बार फिर से रात हो गई है, एक बार फिर से रात हो गई है, एंड एक बार फिर से वो गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है. और वो गजब का नज़ारा क्या है? अंजुमे रक्षंदा, एक एक तारा धीरे धीरे इस काली रात के कैनवस पर लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट अपीयर होना शुरू हो गया है. एंड जब आप हम लोग जब दूसरी लाइन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूजुअली आपने पोइट्री में देखा होगा कि लोग बात करते हैं एक आसमान तारों से भरा, राइट, अ स्टार फिल्ड स्काई, and I love that. I'm a big fan of it. Star-filled sky, yes, it's a beautiful thing to behold. But गालिब जब स्टार-filled sky की बात करते तो आप फर्क देखिए. वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से मुझे ये मंजर देखने को मिल रहा है तारों का रात में, जैसे, and that's the second line, इस तकल्लुफ से. अब तकल्लुफ बहुत प्यारा वर्ड है एंड इसको कई मायनों में यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली इट टॉक्स अबाउट एक किस्म की फॉर्मेलिटी, एक किस्म का प्रोसेस, एक किस्म का रिस्पेक्टफुल तरीका कोई चीज़ करने का, वन बाय वन, एक तरीके से, एक सलीके से कोई चीज़ करना है, उसको तकल्लुफ कहते हैं. सो आप देखिए कि किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं गालिब. और ये भी गालिब की एक बहुत खूबी थी. एक तो
जो वो देख रहे हैं उसको बखूबी बयां कर सकते थे, पर ये आधी ही बात थी। बाकी आधी बात ये होती थी कि वो जो देख रहे हैं उसको देख के उनके मन में किस चीज़ का ख्याल आ रहा है, और वो जो ख्याल था वो किसी और को नहीं आ सकता था सिवाय गालिब के। तो यूजली पोइट्स की जो टैलेंट होती है, जो कैलिबर होती है, जो मज़ा है उनकी पोइट्री का, वो उनके डिस्क्रिप्शन में है ऑफ अ विजुअल। पर गालिब वेंट बियॉन्ड दैट। सो ऑफ कोर्स उनकी पोइट्री में मज़ा था ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजुअल, जो कि वो एक्चुअली 3D में देख रहे हैं, पर वो सिर्फ आधा मज़ा था। बाकी आधा मज़ा इस बात में था कि इसको देख के अब इनके दिल में क्या ख्याल आ रहा है। और आप देखिए कि दिल में क्या ख्याल आ रहा है, इस तकल्लुफ से कि गोया बुत कदे का दर खुला। कह रहे कि ऐसे ये एक एक तारा धीरे धीरे आसमान में उभरता जा रहा है, जैसे मानो धीरे धीरे किसी मंदिर का दरवाज़ा खुल रहा है। बुत कदा, बुत आइडल, कदा प्लेस वेयर इट इज हाउस्ड, टेम्पल। सो कह रहे जिस श्रद्धा से, जिस रेवरेंस से, जिस रिस्पेक्ट से आप किसी होली प्लेस का दरवाज़ा धीरे धीरे खोलते हैं, एक तखल्लुफ से, एक फॉर्मेलिटी से, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। यू कैनॉट रश इट, यू कैनॉट डू इट इन अ हर्ड मैनर, you cannot do it abashedly. There has to be respect, there has to be reverence, there has to be a formal approach to it. बिल्कुल उस अदा से, उस तखल्लुफ से ये तारे आसमान में नजर आ रहे हैं एक एक करके। These stars are appearing in this night sky. So ये तो मतलब काफ़ी साफ है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि गालिब ने तारों का आसमान में एक एक करके अपीयर होना कंपेयर किया है विद द ओपनिंग ऑफ द टेम्पल डोर्स। जैसे आपको मंदिर के बाहर खड़े होके मंदिर के अंदर का जलवा नहीं पता है। एक बंद मंदिर के दरवाजे पे आप जब खड़े हो, आपको पता है इसके अंदर कोई चीज़ है जो कि काबिले रेवरेंस है, विच डिज़र्व्स योर फेथ, विच डिज़र्व्स योर रेवरेंस, पर वो क्या है, उसका जलवा क्या है, बंद दरवाज़ों से नहीं पता चल सकता है। पर धीरे धीरे जब वो मंदिर का दरवाज़ा खुलता है और आपको धीरे धीरे दिखता है उसके अंदर क्या है, और धीरे धीरे उसके अंदर की जो हैपनिंग्स हैं होने लगती हैं, तब आपको हिट करता है द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ बीइंग इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सो उसी तरह से शायद गालिब कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऊपर देखकर काले आसमान में एका तारा आप जलवा समझ नहीं सकते हो, आपको बैठ के देखना पड़ेगा कैसे वो एक एक तारा बढ़ता चला जाता है। और फिर ऑफ कोर्स व्हेन द नाइट इज एट इट्स पीक देयर इज अ कैनोपी ऑफ स्टार्स, राइट, जो कि आप बिहोल्ड कर सकते हो। सो वो तो एक बात है। दूसरी बात जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती है वो है बुत कदा। सो ये हम लोगों ने कुछ पुरानी गज़लों में भी कवर किया है कि उर्दू पोइट्री में अक्सर शायर अपनी बिलवड को बुत कहते थे। बुत इज़ एन आइडल, एंड जैसा हम लोगों को पता है उर्दू पोइट्री, सो मोस्ट ऑफ द शायर्स वर मुस्लिम्स, एंड इन इस्लाम वर्शिपिंग ऑफ एन आइडल इज नॉट अलाउड. It is supposed to be against the religion, right? So शायर अक्सर अपनी बिलवड को बुत कहते थे, just to highlight the fact that हर चीज़ से ऊपर, हर चीज़ से ज़्यादा, हर चीज़ से अलग प्यार और वफा है
जो कि मैं अपनी बिलवेड के लिए फील करता हूँ, खुदा से भी ज़्यादा मानता हूँ, है ना। क्योंकि जो अल्टीमेट लव एंड अल्टीमेट फेथ है, दैट इज़ ओनली रिजर्व फॉर द अल्टीमेट पर्सन or the ultimate, which is God, not a person. Let's try that out. So yes, the ultimate faith and ultimate love is reserved for the ultimate, which is God. Only He deserves your ultimate love and faith. But शायरों का और उनकी शायरी का जो अंदाज था, वो कई बार कई शायरों ने, इंक्लूडिंग गालिब, इस बात को बयां किया है कि नहीं, हमारे लिए हर चीज़ से ऊपर, धर्म से ऊपर, ईमान से ऊपर, खुदा से ऊपर, हर रूल रेगुलेशन से ऊपर है ये इश्क और ये फेथ, जो कि हमको अपनी बिलवेड के लिए है। सो यहाँ पर बुद्ध कथा, यस, इट इज़ अबाउट द टेम्पल, बट आप एक बात इसको एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि ये बुद्ध जो है इज़ द बिलवेड एंड उनका रेजिडेंस या उनकी सराउंडिंग, राइट। अगेन वही बात कि बिलवेड का तो हमेशा ये अंदाज ही होता है कि धीरे धीरे ही बात बनती है, राइट, धीरे धीरे ही बात खुलती है। बिलवेड की ये बहुत टिपिकल क्वालिटी है कि एकदम से नहीं खुलेंगी, एंड देयर हैज़ टू बी अ रेवरेंस, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ तकल्लुफ, राइट, which has to be put in place to actually get access to the beloved, be it access to talk to her, meet her, be with her, whatever it is, right? So there is a reverence, there is a respect that has to be put in place for that to happen. So वो ख्याल भी आता है कि हो सकता है कि ये जो बुद्ध कदे की बात कर रहे हैं, ये probably temple ना हो, but actually the Buddha is the beloved, and you know, the khana is the beloved's residence or the beloved's surroundings. अब बुद्ध कदे का और बुद्ध खाने का, just to get a little more background to that, let's go through a few शेर जो कि इस चीज़ को बखूबी कैप्चर करते हैं। So ये बेदम शाह वारसी का शेर है। अपना तो ये मज़हब है, काबा हो कि बुत खाना, जिस जहाँ तुम्हें देखेंगे हम सर को झुका देंगे। So approximate translation is that my religion is only this, whether it be the mosque or the temple. Wherever I see you, my beloved, I will bow down and worship. So बिल्कुल करेक्टली कैप्चर किया जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि शायरों के लिए उनका खुदा उनकी बिलवेड है। अब अगर वो बुद्ध खाने में खड़ी हैं तो वहाँ चालू हो जाएगी वर्शिप, और अगर वो मस्जिद में खड़ी हैं तो वहाँ चालू हो जाएगी। जहाँ खड़ी होंगी वहीं पे वर्शिप होगी। ये एक और बहुत प्यारा शेर है बेखुद दहलवी का। दी कसम वसल में उस बुत को खुदा की तो कहा, तुझको आता है खुदा याद हमारे होते। yeah, that is cute. So basically again the approximate translation is कि अगर कभी अपनी बिलवेड को मैंने खुदा की कसम दे दी, राइट, कोई बात में खुदा की कसम दे दी, तो बिलवेड ने पलट के पूछा मेरे रहते बैंडविड्थ है अभी भी खुदा को याद करने की? मतलब एम आई नॉट योर ऑल एंड ऑल? अभी भी तुमको खुदा याद है और उसकी कस्में देते हो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक ये वाला है मुस्तर खैराबादी का शेर। मोहब्बत
बुत कदे में चल के उसका फैसला कर दे। खुदा मेरा खुदा है या ये मूरत है खुदा मेरी। By approximate translation, that love, let's get into a temple, okay? And let's decide this once and for all. Is my God the God, or is my God this idol that I worship? Idol as in the beloved. So, yeah, keeping all that in mind, one can, like I said in this share, go both ways. Either a temple with an idol or the beloved in her surroundings. But either way, what Ghalib captures very beautifully is that there is a certain reverence, there is a takalluf, and there is a respect, there is a slow process of this magnificence being illuminated. It's not a quick thing. It is slow, and you should have the reverence, the patience, and the respect to actually be able to behold it. Moving on to the third शेर. गर्चे हूँ दीवाना पर क्यों दोस्त का खाऊं फरेब, आस्ती में दशना पिन्हा हाथ में नश्तर खुला. प्यारा शेर है. And so let's get into the translation. गर्चे हूँ दीवाना, though I am crazy. अब दीवाना आज के ज़माने में तो इसका मीनिंग बहुत हल्का हो गया है. It is just related to somebody who is in love or somebody who has a crush on someone. But पुराने ज़माने में दीवाना was actually a madman, a crazy man, or a madman, crazy man per the society, right? Society was very quick in olden times to shun away people who would express their feelings, not hide their feelings, indulge in the intensity of their feelings. तो उनको बड़ी जल्दी जल्दी conveniently पागल या दीवाना कह के शन कर दिया जाता था. एंड गालिब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलो मान लिया गर्चे हूँ दीवाना, मान लिया कि आई एम क्रेजी, मान लिया कि आई एम मैड, बिकॉज मेरी इंटेंसिटी आप लोगों से हैंडल तो होती नहीं है, मेरी बात आपको समझ में तो आती नहीं है. तो चलो मान लिया हम पागल हैं, दीवाने हैं, बट फिर भी इस दीवानेपन में भी, इस पागलपन में भी क्यों दोस्त का खाऊं फरेब. Even in this state, why should I allow a friend, by extension the beloved, to cheat me or to pull a fast one on me? या उनका धोखा क्यों खाऊं मैं, उनको ये मौका क्यों दूं धोखा खाने का. इतना पागल नहीं हूँ इतना दीवाना नहीं हूँ, राइट, कि उनको मौका दूं मुझे धोखा देने का. जब मुझे साफ दिख रहा है कि धोखा है तो मैं वो धोखा नहीं खाऊंगा, ये मौका नहीं दूंगा उनको मुझे धोखा देने का. एंड दूसरी लाइन में बोलते हैं आस्तीन में दशना पिन्हा. सो आस्तीन इज स्लीव, दशना इज अ डैगर, पिन्हा इज हिडन, सीक्रेट. हाथ में नश्तर खुला, हाथ इज हैंड, नश्तर इज अ लैंसेट, खुला एज इन एक्सपोज्ड. सो गालिब कह रहे हैं कि ये जो बिलवड है, स्लीव में पूरे का पूरा डैगर छुपा हुआ है, हाथ में एक छोटा सा लैंसेट खुला है, और मुझसे एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं ये मान लूं कि ये सिर्फ लैंसेट लेके मेरे तरफ आ रही है, और इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दूं कि इनकी स्लीव पे पूरे का पूरा डैगर छुपा है जो कि ये मेरे पे यूज करेंगे. तो मुझे अप्रोच कर रहे हैं saying that we will use the lancet on you, but जो actual objective है वो है to use the dagger on me. and गालिब कह रहे हैं कि ये धोखा मैं नहीं खाऊंगा, दो मैं पागल हूँ. अब यहाँ पर थोड़ा सा background context probably will be helpful. So lancet,
लैंसेट वाज दिस, ये जो नश्तर जिसको कह रहे हैं ना, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लैंसेट या फ्लेम. These were instruments in olden times, like really olden times, which were used for bloodletting. अब जब इसके बारे में पढ़ा और रिसर्च किया तो तकलीफ तो बहुत हुई. एंड ऑफ कोर्स ऑल ओवर अगेन रियलाइज किया कि पुराने ज़माने में ट्रीटमेंट के नाम पर जो अट्रोसिटीज़, जो टॉर्चर्स किए जाते थे लोगों पे, बीमार लोगों पे, वो काफ़ी खौफनाक थे. एंड उनमें भी सबसे ज़्यादा जो अट्रोशियस, इनह्यूमेन प्रोसीजर्स किए जाते थे वो इन सो कॉल्ड पागल, दीवाने लोगों पे, राइट, जिनको मैड, बिकॉज साइकोलॉजी वगैरह की तो इतनी ज्ञान थी ही नहीं लोगों को तो बीमारी भी नहीं पता थी कि क्या है, बस पागल है. तो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हॉरर स्टोरीज अबाउट लोबोटमीज एंड ऑल दैट स्टफ, बट वो तो फिर भी थोड़ा प्रोसीजरल था. पर ये जो था ब्लड लेटिंग, पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि भाई ये पागल हो गया है, जिस्म पे तो कोई ऐसा घाव या ऐसी कोई बीमारी दिख नहीं रही है फिजिकली जिसका इलाज कर दें, तो प्रॉबेबली पूरा खून ही खराब हो गया अंदर. तो खून बहा दो, खराब खून, गंदा खून बहा दो, तो फिर ये सही हो जाएगा. फिर बॉडी जब नया खून बनाएगी तो वो साफ होगा. बड़ा ही आर्बिट्ररी, हाइपोथेटिकल एंड लाइक आई सेड अट्रोशियस हाइपोथेसिस जिस पे काम करते थे पुराने ज़माने में लोग. एंड ये जो ब्लड लेटिंग थी यूजुअली तो इंसानों पे नहीं होती थी, पर पुराने ज़माने में जब होती थी तो ये करते थे. एंड इसमें ये धीरे धीरे लैंसेट से, सो लैंसेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक डबल साइडेड ब्लेड सा होता था. एंड उसको वेन ढूंढ के, यूजुअली कोई बड़ी वेन जैसे जुगलर वगैरह को ढूंढ के वो ब्लेड उसके ऊपर रखते थे, और फिर इनके पास एक फ्लेम स्टिक होती थी जिससे वो उस ब्लेड को ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना हैमर इन करते थे वेन में. एंड ब्लेड इतना शार्प होता था कि वो फट से वेन में जाता था, क्रिएटिंग अ वेरी क्लियर प्रिसाइज कट. एंड देन वो निकाल लेते थे उसको, फिर ब्लड बहाते थे जितना बहाना था या कलेक्ट करना था, और उसके बाद उस इंसिजन पे एक नेल से वो इंसिजन क्लोज करते थे और धागे से बांध देते थे. बहुत ही वियर्ड प्रोसेस. बट ये सो लैंसेट जो था उसको एक्चुअली एक मेडिकल डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता था. तो तभी ये बिलवेड आ सक रही हैं उनके सामने खुले हाथ में लैंसेट लेके. सो साफ पता चलता है कि बिलवेड कह रही है हम आपका इलाज करने आ रहे हैं. अब यहाँ पे दोस्त कहा है तो आई एम थिंकिंग बिलवेड, पर ये दोस्त वेल विशर्स भी हो सकते हैं, बिलवेड भी हो सकती हैं, टोटली अप टू यू. बट दोस्त का क्यों खाऊं फरेब, दोस्त सिंगुलर बोला है इसलिए आई एम अज्यूमिंग बिलवेड, प्लूरल होता तो मैं सोचती वेल विशर्स वगैरह. बट हुएवर इट वाज, they were coming towards Ghalib with this lancet in their open hand, and probably with this story of हम आएंगे, हम आपको छोटे छोटे निक्स देंगे, आपका ब्लड लेटिंग करेंगे, आपका गंदा खून बह जाएगा, उसके साथ आपका ये जो जुनून है, पागलपन है, ये भी बह जाएगा, नया खून बनेगा, वो फ्रेश होगा, वो हेल्दी होगा, एंड यू विल गेट बेटर. उस प्रिटेक्स्ट पे आ रहे हैं इनकी तरफ, तभी खुलेआम आ रहे हैं विद अ लैंसेट. वरना छोटा चाकू हो या बड़ा चाकू, आप चाकू लेके किसी की तरफ कैसे जा सकते हो. बट ये आ रहे हैं गालिब की तरफ, प्रॉबेबली अंडर दिस मेडिकल प्रिटेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रिटेंस, बट विद अ डैगर विच इज हिडन. सो बस इतना ही है कि इस शेर में एक बात क्लियर है कि पहली बात तो अगर इतना कुछ समझ रहे थे तो पागल तो नहीं थे, पर अपने आप को कह दिया पागल. प्रॉब्ली थक गए डिफेंड करते करते कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ,
मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं जो फील कर रहा हूँ वो सही है। इंटेंस है, प्रॉब्ली आपके लिए स्ट्रेंज है, प्रॉब्ली आपके लिए टैबूड है, बट पागलपन नहीं है। तो गालिब ने आखिर कह दिया हाँ हाँ ठीक है, मैं पागल हूँ, पर इस पागलपन में भी इतनी फैकल्टीज़ मेरी अभी भी इंटैक्ट है कि आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। आई एम डाउन बट यू कैन नॉट ट्रैम्पल ऑल ओवर मी। हाँ, सो ये जो आप छोटा सा लैंडसेट लेके मेरी तरफ बढ़ रहे हो, probably to do bloodletting and cure me, I can see the dagger in your sleeves, so I'm not gonna allow it. I'm not gonna allow it. Moving on to the next share. गो ना समझूं उसकी बातें, गो ना पाऊं उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैक कर खुला। बिल्कुल सिंपल शेर है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग ट्विस्ट नहीं है, पर प्यारा बहुत है, प्यारा बहुत है। गो ना समझूं उसकी बातें, गो ना पाऊं उसका भेद। सो गालिब बोल रहे हैं कि बातें मुझे उसकी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। एंड अगेन, नॉट बिकॉज गालिब की समझ में कोई कमी थी, बट गालिब खेल रहे थे लेवल 10 पर इन टर्म्स ऑफ इश्क, एंड प्रॉब्ली जो बिलवेड थी वो अभी 0 पे थी। तो मे बी वो जो गैप था इंटेंसिटी में, वो गालिब को नहीं समझ में आता था कि भाई इनके लिए ये सब बातें इतनी कूल कैजुअल है और यहाँ हमारी तो जान पे बनी हुई है। प्रॉब्ली वो जो गैप था वो है कि बात समझ में नहीं आती है। बट ये भी हो सकता है कि भाई बिलवेड बातों का फेरा करती थी, कुछ कहती थी, she didn't mean what she said, she didn't say what she meant, so maybe वो confusion भी था। And then ना पाऊँ उसका भेद, so I don't even understand her secrets and her mysteries। दिल में क्या है बोलती नहीं है, जो बोलती हैं वो दिल में नहीं है। so वो जो confusion है, उनकी mysteries, उनके secrets सब उनके हैं, मुझे समझ में तो नहीं आए। ना उनकी मुझे बातें समझ में आई, ना मैं उनका सीक्रेट को फिगर आउट कर पाया। शी स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, शी स्टिल रिमेन्स कंफ्यूजिंग, शी स्टिल इल्यूड्स मी, शी स्टिल इल्यूड्स मी। आज भी उनकी बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, बट आई एम थैंकफुल फॉर वन थिंग, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैक कर खुला। सो गालिब कह रहे हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है कि ये परी जैसी चीज़, परी पैकर मतलब परी जैसी काउंटेनेंस, परी जैसी फिगमेंट, परी जैसी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, राइट, एकदम एक परी जैसी जो ये चीज़ है, इसने मेरे से बातचीत करनी तो चालू की, बातचीत चालू तो हुई, इंटरेक्शन चालू तो हुआ, समझ में भी आ जाएगा। अब बातचीत चालू हुई तो बात समझ में भी आ जाएगी। वो जो शेर है ना, आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। सो समझ लेंगे विद टाइम, बात समझ भी लेंगे, पर अभी मेरे को इसी बात की खुशी कि बातचीत हो रही है, चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, बातचीत हो रही है, ये काफ़ी है, आज के लिए ये काफ़ी है, उम्र पड़ी है समझने के लिए। So that was the fourth share of this ghazal. I think we will stop here. गज़ल लंबी है, हम लोग बाकी के शेयर पिकअप करेंगे in the next episode. For now, I think, yeah, we can stop at the fourth share. I do hope you guys enjoyed the impressions of this ghazal. I look forward to getting into the fifth share in the next episode, and you know, all the consecutive ones. Hopefully we'll be able to complete it in the next episode. If not, we will use another episode. Till the next episode, everybody, lot of love and light to you. Thanks for watching.